किसान वाणी कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। किसान वाणी कार्यक्रम सुनिए सारे बाण भाइयों ने विनोद भाई की राम राम। किसान भाइयों, आज किसान वाणी कार्यक्रम में चर्चा करेंगे किसान कॉल सेंटर पे और साथ में जानकारी लेंगे नई फसल नई उमंग के तहत ढिंगरी खूम की खेती में सावधानी पे, और दूसरे जो समसायिक विषय हैं उन पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन शुरुआत करें आज के खेती बाड़ी से संबंधित प्रश्न तय। तो भाइयों, आज का जो प्रश्न है वो है, हरियाणा में किस फसल ने सावणी फसल कहा जावा है? हरियाणा में किस फसल ने सावण की फसल कहा है? और इस प्रश्न का उत्तर किसान भाई जो हैं SMS के माध्यम से दे सके हैं। और SMS करना है, SMS करने के लिए जो मोबाइल नंबर है वो है 94 660 21 336। और इस प्रश्न का उत्तर भाइयों हम आज के किसान वाणी कार्यक्रम में देंगे 6:50 पे। We are the Indian farmers, fondly called Annadata. We are sowing dreams in its soil, nurturing them to grow bigger, making them a reality for the last 9 years. किसान की आय को बढ़ाने के लिए अनेक कदम उठाए गए। मिट्टी की जांच से लेकर सैकड़ों नए बीज तैयार करने तक, सिंचाई के सशक्त नेटवर्क से लेकर किसान रेल तक अनेक कदम उठाए। In line with our Honorable Prime Minister's vision, today we fulfill the world's need for milk, pulses, jute, spices, rice, wheat, cotton, fruits, vegetables and fish. Our centuries-old superfood, Shri Anna, globally known as millets, are being recognized as climate-resilient and nutrition crops. The United Nations, at our behest, began this year as the International Year of Millets celebration. In past 9 years, under the visionary leadership of our Prime Minister Narendra Modi, we found new heights. Our identity found new dimensions, ensuring not only food security but also nutrition security for the world. The Prime Minister Farmers Income Support Scheme caters to our smallest needs. It makes our victory loom in our fields. The Prime Minister Crop Insurance Scheme is a trusted friend who never leaves us hanging and keeps us going through every thick and thin. The Prime Minister Agriculture Irrigation Scheme taught us that no land is barren. One who dares to blossom can be stopped by none. The soil health cards analyzes our soil, so we sow what's beneficial and reap without much toil. Electronic National Agriculture Market, that is ENAM, takes our produce beyond boundaries. The farmer's train puts it in new homes, in newer geographies. Today, we harness AI's potential. We fly drones and make high-tech mechanization possible. Our youngsters are innovating farm technologies. Our agri-startups and robust value chains are minting success stories. Nature's conservation is our vital desire. We've also become renewable energy suppliers. Today, we are achieving our destiny's might. Our power has reached new heights. हमारे किसानों ने हमें ना सिर्फ आत्मनिर्भर बनाया, बल्कि आज उनकी वजह से हम निर्यात करने में भी सक्षम हो गए। So, as the country marches towards development, nearing its 100 years of freedom, we
the farmers of India. Creating the new age agricultural solutions, ensuring food and nutrition security, climate resilient agriculture and robust value chains. And Maharshi, that is Millets and Other Ancient Grains International Research Initiative. Let's make world where everyone gains. One earth, one family, one future. और भाइयों, अब करें चर्चा किसान कॉल सेंटर पे। किसान भाइयों, सरकार ने किसान भाइयों के हितों ने ध्यान में रखकर साल 2004 में 21 जनवरी 2004 ने एक नए नंबर की शुरुआत करी थी और ये नंबर था किसान कॉल सेंटर हेल्पलाइन नंबर। और भाइयों, किसान कॉल सेंटर हेल्पलाइन नंबर पर किसान भाई कॉल करके खेती बाड़ी, बागवानी, पशुपालन, मत्स्य पालन, मधुमक्खी पालन और खेती से जुड़ी जो भी समस्याएं हैं और साथ में मौसम की जानकारी भी है, इस तरह की जो भी समस्या या कोई भी जानकारी किसान भाई लेना चाहें तो इस फ़ोन के माध्यम से सब तरह की जो है जानकारी मुहैया कराई जावा है। क्योंकि किसान भाइयों, हम सब जाना है कि हमारे देश की जो तकरीबन 60 से 70% जो जनसंख्या है वो खेती बाड़ी पर निर्भर करे है और सरकार का भी एक उद्देश्य है कि किसान भाई की जो आय है वो दुगनी करनी है। तो खेती बाड़ी में उन्नतीकरण खातर सरकार समय समय पर नई नई योजना लेकर आवा है, लेकिन समस्या यह है कि जो नई नई योजनाएं हर रोज़ जो आ रही हैं सरकार की जागरूकता की कमी के चलते या फिर जो है कह लो कि कई बार जो है योजनाएं जो है किसान भाइयों तक पहुंच ही नहीं पाती, तो उससे जो किसान भाई लाभ नहीं ले पाते। तो ऐसे में किसान भाइयों के लिए सरकार ने जो केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय है 2004 में किसान कॉल सेंटर हेल्पलाइन नंबर की शुरुआत करी। और किसान भाइयों, किसान कॉल सेंटर का जो नंबर है वो है 1800-180-1551 और इस नंबर पर भाइयों कॉल करके जो है खेती बाड़ी से जुड़ी सारी जानकारी किसान भाई घर बैठे बैठे हासिल कर सके हैं। और ये एक फ्री हेल्पलाइन नंबर है, यानी कि जब भी किसान भाई इस नंबर पर कोई भी समस्या या प्रश्न पूछना चाहें तो इसका कोई खर्चा नहीं आता। और भारतीय जो कृषि मंत्रालय है और भारत सरकार के जो संयुक्त प्रयास हैं उनकी बदौलत ही जो है 21 जनवरी 2004 को ये किसान हेल्पलाइन नंबर शुरू कराया गया। और भाइयों, ये जो टोल फ्री नंबर है इस पर किसान भाई कॉल करके अपनी क्षेत्रीय भाषा में कोई भी जानकारी ले सके हैं, क्योंकि ये जो कॉल सेंटर है ये 22 भाषाओं में जो है जानकारी उपलब्ध करावा है। और देश में लगभग जो है 13 किसान कॉल सेंटर जो है इस समय जो है चलाए जा रहे हैं। और किसान कॉल सेंटर हेल्पलाइन नंबर के माध्यम से किसान भाई जो है कॉल करके खेती बाड़ी है, बागवानी है, पशुपालन है, मत्स्य पालन है, मधुमक्खी पालन है या खेती बाड़ी से जुड़ी कोई समस्या है या उसके अलावा मौसम की जानकारी है, सब तरह की जो है जानकारियाँ किसान भाइयों को मुहैया कराई जावा है। और किसान भाई जो हैं किसी भी क्षेत्र में है, किसी भी प्रदेश में है, देश के किसी भी हिस्से में है, अपनी जो क्षेत्रीय भाषा है उसमें अपना प्रश्न पूछ सके हैं और उसका जो उत्तर है उनको उसी जो क्षेत्रीय भाषा में उनका उत्तर दिया जाओ है। क्योंकि जो प्रश्नों के उत्तर देने वाले जो एजेंट हैं वो सभी जो है बागवानी, पशुपालन, मत्स्य पालन, मुर्गी पालन है या जो मधुमक्खी पालन है, रेशम उत्पादन है या जो एक्वाकल्चर यानी कि जो पानी संबंधित कल्चर है या जो कृषि इंजीनियरिंग है, उन सब में जो है स्नातक या फिर जो है पीजी या डॉक्टरेट है। यानी कि वो सारे के सारे जो प्रश्नों के उत्तर देने वाले वहाँ बैठे हैं वो सारे कुशल लोग हैं और वो सही जानकारी हर प्रकार की किसान भाइयों तक प्रदान करा है। और इसके अलावा भाइयों, अगर कई बार जरूरत पड़े तो जो कृषि विशेषज्ञ है या उस क्षेत्र का जो विशेषज्ञ है वो भी जो है किसान भाइयों को जानकारी प्रदान करे हैं। और बात करें भाई किसान भाई जो है किस समय फ़ोन करके अपनी समस्या का समाधान ले सके हैं, तो भाइयों सुबह 6 से लेकर रात को 10 बजे तक किसान भाई किसी भी समय फ़ोन कर सके हैं और हफ्ते के 7 दिन वो जो है फ़ोन करके खेती बाड़ी से संबंधित कोई भी जानकारी किसान भाई ले सके हैं। यह तो भाइयों करी चर्चा किसान कॉल सेंटर पे। और भाइयों बात करें मौसम की, तो
मौसम में जो आज का अधिकतम तापमान रहा 31 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान रहा 25 डिग्री सेंटीग्रेड। और आने वाले कल का अधिकतम तापमान रहने की संभावना है 32 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान रहने की संभावना है 24 डिग्री सेंटीग्रेड। और भाइयों, प्रदेश में बादल बने रहेंगे, बूंदाबांदी और कहीं कहीं जो है तेज़ बारिश होने की भी संभावना है। और बात करें भाइयों कल के कृषि कार्यक्रम की, तो कल के किसान वाणी कार्यक्रम में भाइयों चर्चा करेंगे मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना पे, और साथ ही आज की नसीहत के तहत चर्चा करेंगे बेल वाली सब्जियों की रोगों से रक्षा और उनकी देखभाल पे। और जानकारी लेंगे भाइयों प्राकृतिक खेती में खेती का बदलता स्वरूप और जैविक खेती पे भाइयों। और इब करो भाइयों का मनोरंजन, सुनाओ लोकगीत। बोलिए सूते न जगा दूते कदे उठ के लड़ाई कर दे, हर मेहनत तलवार काट के जान की सफाई छल छबिला इसका मेरे तजबर वसीला, इसका मेरे तजबर वसीला। और चाचा ताऊ कटम कबीला, चाचा ताऊ कटम कबीला। नुबलियान के सगाई कर दे राम जी से, छोड़े न मेरे बाप का जमाई। मन की मैं सोची शरत करूंगी, मन की मैं सोची शरत करूंगी। और पूर्णवासी का व्रत करूंगी, पूर्णवासी का व्रत करूंगी। इस छैल की लगाई कर दे राम जी, बता ईश्वर का है कौन सा शख्स बुराई। सोचरी मैं मछली की ढाल लोचरी, मैं मछली की ढाल लोचरी। ये मेरी अर्जी से राम गोचरी, बाबे माता लखाई कर दे सत्यनारायण, तेरी कथा बात दूं इन मेरी ननंद का भाई कर दे। बजा कर लक्ष्मी चंद के नाम ने दोनों वक्ता सुबह शाम ने दोनों वक्ता सुबह
देवी माई कर दे न मांगे राम पान चियाड़ा मरती की दवाई कर दे। और ये तो सुनी भाइयों ने रागणी और गायक कलाकार थे विक्रम फोगाट। और भाइयों बात करें आज के कृषि प्रश्न की, और आज का कृषि प्रश्न था भाइयों कि हरियाणा में किस फसल ने सावणी फसल के नाम तक जाना जावा है। तो इस प्रश्न का भाइयों सही उत्तर दिया है ललित शर्मा ने कुंडल जिला भिवानी से, और इन्होंने उत्तर दिया है कि जो खरीफ की फसल है उस नाम सावणी फसल कौवा है। इसके अलावा भाइयों गांव उगाड़ा जिला अंबाला हरियाणा से लिखने वाले भाई हैं राजेंद्र कुमार, मलकीत कौर, आरती रानी, राघव और हरमन। इन नौ भी भाई सही जवाब दिया है कि जो खरीफ की फसल है उन नाम सावणी फसल कौवा है। और भाइयों अब करें चर्चा ढिंगरी खूम की खेती में सावधानी पे। किसान भाइयों ढिंगरी जो है एक खुशबूदार खुम्ब है जो खाण में बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट भी है और पोषक तत्वों से भरपूर भी है। और इसका आकार सीप नुमा होने के कारण भाइयों इसने आइस्टर मशरूम के नाम से भी जाना जावा है। और ढिंगरी की खेती का जो प्रचलन है वैसे तो अपने हरियाणा में भी कम है, लेकिन इसके फ़ायदे बहुत ज़्यादा हैं क्योंकि भाइयों तो खेती की जो इसकी विधि है बहुत आसान है, साथ में इस पर जो खर्चा है वो भी बहुत कम आवा है। थोड़ा सा मौसम सुहावना और मन लुभावना हो जाए तो ये संकेत है कि ढिंगरी की काश्त कर दो। और इसकी खेती भाइयों बड़ी ही आसानी तय सिर्फ मई और जून के महीने ने छोड़कर पूरा साल हम इसकी खेती कर सके हैं। और भाइयों इसके कवक जो है जाल फैलाव के अनुकूल जो तापमान यानी कि 25 से 30 डिग्री सेल्सियस तापमान होना चाहिए, और जो इसका फलन फूलन खातर जो तापमान है वो लगभग 24 डिग्री सेल्सियस है। और आर्द्रता 80% से ज़्यादा रहे तो बहुत बढ़िया रहेगा। और किसान भाई जो है एक साल का जो इसका फसल चक्कर है भाइयों जो ढिंगरी खूम है इसका फसल चक्कर 40 से 45 दिन का पूरा हुआ है। और इस तरह भाइयों पूरे साल में किसान भाई लगभग 5 से 6 फसल इसकी आसानी तय ले सके हैं। और एक बात का ध्यान जरूर रखें कि जो धान है, सरसों है या जो गेहूं का 1 किलोग्राम भूसा है तो उसमें हम 1 किलोग्राम ताज़ी ढिंगरी का उत्पादन आसानी तय कर सके हैं। और अपने हरियाणा प्रदेश के जो ग्रामीण आंचल के जो लोग हैं, जिनमें भूमिहीन लोग हैं या जो आर्थिक रूप से कमज़ोर लोग हैं या महिलाएं हैं जो घर पे हैं, तो वो भी आसानी तय और बड़ी सफलतापूर्वक जो है ढिंगरी खूम की खेती कर सके हैं। ये बात करें कि भाई अपने हरियाणा प्रदेश में ढिंगरी खूम की खेती कम करी जाव है, तो हम ढिंगरी खूम की खेती करें क्यों? तो एक तो भाइयों ढिंगरी जो है उगाने की जो तकनीक है वो बड़ी आसान है, कम खर्चे वाली है और कम समय में जो हमने फसल तैयार होकर मिल जाए। इस खातर भाइयों कंपोस्ट बनाने की जरूरत भी नहीं पड़ती और इसने उगाने में खर्चा भी बहुत कम आवा है। साथ में भाइयों इसमें केसिंग की जरूरत भी नहीं पड़ती। और ढिंगरी खूम का उत्पादन बटन खूम की अपेक्षा जो है 1 वर्ग मीटर में 3 से 4 गुना तक लिया जा सका है। और सफ़ेद बटन मशरूम की जो काश्त भाइयों जहाँ वो अक्टूबर और लेके जो फरवरी का महीना है उसमें करी जा सके है, जबकि जो ढिंगरी खूम की जो खेती है वो मई और जून के महीने ने छोड़कर सारा साल जो है किसान भाई या जो भी आम जन है वो इसकी खेती कर सका है। और अधिक तापमान या आसानी से सह है, क्योंकि अगर तापमान बढ़े 24 डिग्री सेंटीग्रेड तो ऊपर है तो भी जो है ढिंगरी फसल के उत्पादन में कोई समस्या नहीं आती। रख रखाव भी ढिंगरी का आसान है और इसमें सुखा कर भी हम इसमें प्रयोग कर सके हैं। इसका भंडारण भी अधिक समय तक किसान भाई कर सके हैं। और साथ में भाई जो शहतूत की टोकरी है या नायलॉन की जाली है, लकड़ी की पेटी है या सैया है, प्लास्टिक के लिफाफे हैं, उनमें भी सरलतापूर्वक जो है इसमें हम उगा सके हैं। और बटन खूम की अपेक्षा भाइयों ढिंगरी की जो फसल है उसमें कीड़े और बीमारी का प्रकोप भी ना के बराबर है। और ढिंगरी की जो फसल है वो 20 से 25 दिन में पक कर तैयार हो जाए है, जबकि जो बटन मशरूम है उसका उत्पादन भाइयों 55 से 60 दिन में लगभग हुआ है। और इस खूम ने भाई जो महिलाएं हैं जो घर पे बैठी हैं या जो कोई काम शुरुआत करना चाह रही हैं, आमदनी का एक साधन ढूंढ रही हैं, तो वो भी आसानी से इसकी जो है इसकी पैदावार ले सके हैं।
और डिंगरी की जो काश्त है वो गेहूं, धान, सरसों का भूसा है या मक्का है, ज्वार बाजरा है, केले के पत्ते हैं, कपास के डंठल व पत्तियां हैं, या गन्ने का जो छिलका है, बगास है, सूरजमुखी के सरसों के डंठल हैं, या जो सूखा घास है या अन्य प्रकार के जो पौधे हैं उनका भी कोई अवशेष है उस पर भी आसानी तय करी जा सके है। भूसा और जो दूसरे अवशेष हैं वो ताज़ा हो, सूखा है या जो अच्छी तरह तय उसका भंडारण करना जरूरी है और उसमें किसी भी तरह की फफूंद का असर नहीं होना चाहिए। इस बात का खास ध्यान हमने रखना है। ये बात करें सामग्री तो हमने ले ली, इसकी उगान की तकनीक की है। तो डिंगरी खातर भाइयों कंपोस्ट और जो खाद बनाना है वो सफ़ेद बटन खूम के बजाय बहुत आसान है। शुरू में प्रयोग करे जाने वाली जो सामग्री उसमें 4 से 6 सेंटीमीटर के लगभग छोटे छोटे टुकड़ों में उसे काट लें। सरसों या गेहूं या जो धान का जो भूसा है और जो दूसरे अवशेष हैं उनने एक ओदी में या फिर जो ड्रम में या फिर जो है किसी थैले में भर कर उसमें साफ पानी में पूरी रात 10 से 12 घंटे तक उसने भिगो कर रखा है। वैसे तो भाइयों खाद के प्रयोग किए जाने वाले जो अवशेष हैं उनमें भी जो है गर्म पानी में 60 से 80 डिग्री सेंटीग्रेड पे 10 से 12 घंटे तक या फिर जो है भाप विधि द्वारा भी है 60 से 80 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पे 24 घंटे के में जो है उपचार द्वारा कीटाणु रहित भी इसने कर सका है, ताकि इसमें कोई कीटाणु न रहे, किसी प्रकार कोई फफूंद न रहे, तो ज़्यादा तापमान पर उसने हम ख़त्म कर सके हैं। और जो भाई बड़े स्तर पर जो है इसका उत्पादन करना चाह रहे हैं तो रसायन का प्रयोग करके भी जो है आसानी से इस समस्या से छुटकारा पाया जा सका है। इस खातर भाइयों 200 लीटर पानी में 400 मिलीलीटर फार्मेलिन और साथ में 30 ग्राम जो है बावास्टीन के घोल में अवशेष ने 24 घंटे तक उपचारित कर लें। तो उसके बाद इसमें किसी तरह की जो फफूंद है, किसी तरह के जो जीवाणु या विषाणु हैं उनका असर खत्म हो जाएगा। इसके बाद भाइयों निकाल कर इसने फर्श पे या जो है जाली पर अच्छी तरह से फैला दें और अब इसमें बीज डाल खातर भाइयों कंपोस्ट तैयार है। जो कंपोस्ट तैयार हो जाएगी उसमें 2% खुम का बीज यानी कि 200 ग्राम बीज हमने 10 किलोग्राम भिगोए हुए भूसे में मिलाना है और उसके बाद इस मिश्रण में भाइयों 40 से 60 सेंटीमीटर पॉलीथीन की जो थैली है उसमें यानी कि 100 से 200 गेज में भर दें और थैलों में भाइयों 1 सेंटीमीटर आकार के हर थैली में 20 से 24 छेद कर दें ताकि पानी और जो कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा मात्रा में इसमें हो जाए तो वो बाहर निकल जाए। और इस प्रकार के जो थैले हैं उनमें लगभग 6 से 8 किलोग्राम जो ये गिल्ला मिश्रण है वो 3/4 भाग तक भर लें और थैले के मुंह पे फिर धागे तो उसने सीम दें और थैलों ने भाइयों किसी हवादार कमरे में रखा है जिससे उसका तापमान 20 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में बना रहे और साथ में जो नमी की मात्रा है वो लगभग 80% के आसपास रहे। कमरे में नमी बनाए रखने खातर भाइयों दिन में 2-3 बार पानी का छिड़काव जरूर करें और खुम्बी का जो बीज है वो भुस्से और पुआल में पूरी तरह से फैलने में लगभग 10 से 12 दिन का समय लग जाए, जो भुस्से को फिर कड़ा बना देगी। यानी कि 10 से 12 दिन के बाद हमने पता लगा कि भी अगर सारा फैल गया तो वो करड़ा हो जाएगा और इस समय पर भाइयों कमरे में अंधेरा रखना जरूरी है और साथ में भाइयों पॉलीथीन धीरे तक काट कर उसने हटा दें और लकड़ी के बेंच या जो सैया है उस पर 6 इंच के फासले पर इन सब ने रख लें और कमरे में भाइयों 2 से 3 बार पानी का छिड़काव जरूर कर दे रहा ताकि नमी की मात्रा 80% या 90% के आसपास बनी रहे। और साथ में भाइयों कमरे के अंदर जो है हल्का सा धुंधला सा प्रकाश अगर हम रख पाएं तो ज़्यादा लाभदायक होगा। बस इस बात का ध्यान जरूर रखना कि सूरज की सीधी किरण कमरे में ना आवे, इससे नुकसान हो जाएगा। अगर कमरे में भाइयों धुंधली सी रोशनी ना हो पावे तो 1-2 घंटे तक जो है बल्ब जलाकर रोशनी दे दें और समय समय पर भाइयों कमरे में रोजाना 1 से 2 घंटे तक जो है ताज़ा हवा भी जरूर देवें। और अगर कमरे का क्षेत्रफल ज़्यादा है खुम्ब के उत्पादन के मुकाबले तो वहाँ पर दिक्कत ये आ जाएगी कि नमी की मात्रा बराबर बनाए रखना मुश्किल हो जाएगा। तो कोशिश करें कि खुम्ब की जितनी हम पैदावार ले रहे हैं उस हिसाब से कमरे का हम चयन करें। और बिजाई के भाइयों 20 से 25 दिन के बाद जो है खुम्ब की फसल हम ले सके हैं और खातर भाइयों 8 से 9 दिन के अंतर पर 3 से 4 फसल आसानी से खुम्ब उत्पादक भाई ले सके हैं। कई बात का ध्यान रखना है कि खुम्ब ने किनारों तक मुड़ने से पहले ही तोड़ लें और तुड़ाई का जो सही तरीका है वो है कि उसने खींच कर ना तोड़े बल्कि उसने मरोड़ कर तोड़े और इसका जो कोई भी हिस्सा है वो सैया पर ना छोड़े, क्योंकि किसी भी सैया अथवा जो थैले पर अगर खुम्ब की तोड़ाई एक ही बार पूरी कर लें क्योंकि फिर भाई उसका जो अगली फसल है वो सही समय पर हमें मिल जाएगी। तो भाइयों ये तो बात करी खुम्ब की पैदावार पे और अब चर्चा करें भाइयों IYOM 2023 बाजरा एक सुपर फूड, इनकी बाजरा के पोषक तत्व के हैं, बाजरा हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। तो भाइयों बाजरे में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फाइबर, विटामिन सब भरपूर मात्रा में पाए जाए हैं और बाजरे में अगर कार्बोहाइड्रेट की बात करें
तो बाजरा कार्बोहाइड्रेट का एक बहुत बढ़िया स्रोत है जो शरीर में पूरी तरह तो ऊर्जा देव है, साथ में जो शरीर के अंदर की जो शर्करा है उसका स्तर भी तेजी तक कम करा है। साथ ही बाजरा प्रोटीन का भी एक बहुत बढ़िया स्रोत है जो शरीर के निर्माण में और मरम्मत में बहुत आवश्यक है। और साथ ही इसमें जो अमीनो एसिड है वो भी पर्याप्त मात्रा में पाया जावा है। लाइसिन भी इसमें बहुत मात्रा में पाया जावा है जो कि दूसरे अनाजा में कम पाया जावा है। और बाजरे में भाइयों फाइबर भी जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जावा है जो हमारे जो पाचन तंत्र है उसने मजबूत करने में मदद करे है, कब्ज न रोके है, हृदय रोग और जो दूसरे जोखिम है उनने भी कम करे है। साथ ही भाइयों बाजरे में विटामिन की मात्रा भी भरपूर है। साथ ही साथ एक ही तरह के विटामिन नहीं है, जो कई तरह के विटामिन है वो सब जो है बाजरे में भरपूर मात्रा में पाए जावे हैं जो शरीर में ऊर्जा और जो शरीर का जो तंत्र है उसने मजबूत करे हैं। साथ ही इसमें विटामिन सी है, विटामिन ई भी है और इसमें जो है एंटीऑक्सीडेंट गुण भी है, यानी कि जो शरीर के जो विषाक्त पदार्थ हैं उनने भी शरीर तयो बाहर निकालने में मदद करे है। साथ ही जो सर के बाल हैं उनने भी मजबूत बनाए रखने में मदद करे है। और बाजरे में भाइयों खनिज जो तत्व हैं जिस तरह आयरन है, मैग्नीशियम है, पोटाशियम है, फास्फोरस है, ये सारे खनिज तत्व भी जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में मिले हैं। और ये खनिज जो तत्व हैं वो शरीर में स्वस्थ बनाए रखने में, हड्डियों में मजबूत करने में, मांसपेशियों और जो दूसरे अंग हैं उन्हें बनाए रखने में और साथ ही साथ भाइयों शरीर के जो दूसरी शारीरिक प्रक्रिया हैं उनमें भी नियमित रूप से चलाने में मदद करे है। और बाजरा जो भाइयों वजन कम करने में भी मदद करे है क्योंकि बाजरे में भाइयों कम कैलोरी वाला और अच्छे फाइबर वाला ये भोजन है जिससे जो है वजन कम हुआ है। साथ ही साथ जो मधुमेह है, शुगर की जो समस्या है उसमें भी एक आदर्श भोजन माना जावा है क्योंकि ये जो है शुगर ने नियंत्रित करे है और इंसुलिन के स्तर ने भी जो है रोकने में ये मदद करे है। साथ ही साथ भाइयों ये हमारे इम्यून सिस्टम ने भी मजबूत करे है और शरीर के जो सभी नस नाड़ी हैं उनने भी साफ रखने में बाजरा बहुत ज़्यादा मदद करे है। तो भाइयों ये तो बात करी कि बाजरा ने हम सुपर फूड क्यों कहे हैं। और इसी के साथ भाइयों किसान कॉल सेंटर, किसान भाई किसी भी तरह की समस्या का समाधान पाने के लिए सुबह 6 से लेकर रात को 10 बजे तक किसान कॉल सेंटर पर अपनी किसी भी समस्या का समाधान या मौसम की जानकारी ले सके हैं। और किसान कॉल सेंटर का नंबर है 1551। किसान वाणी कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। और भाइयों किसान वाणी कार्यक्रम का समय यहीं तक। इसी के साथ अपने भाई विनोद ने दो इजाजत। अच्छा भाइयों, राम राम।